Hello, friends. Welcome to another episode of Trading Philosophy and Psychology, where we talk about deep thinking topics. Topics which are related to more trading psychology, philosophy, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. कौन हूं मैं? आई एम योर होस्ट फॉर दिस एपिसोड, शानंदो दास, मल्टी एसेट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट, as well as your guide to multi-asset global macro and markets. Thank you everyone for जो भी ये वीडियो देख रहे हैं. Thank you so much. This video is so far released initially, at least for the members. So members, I hope you are doing well, and thank you for joining my channel. So in this candlestick calamity, what I want to address in this one and upcoming philosophy and psychology, I'm going to challenge some conventional ideas. कुछ कॉन्वेंशनल जो रेगुलर आइडियाज है उसके फाउंडेशन को हम लोग चैलेंज करने वाले हैं, थॉट वाइज, एज आई सेड, डीप थिंकिंग टॉपिक. और आज का टॉपिक है कैंडल स्टिक कैलामिटी. Initially, we will in the initial episodes we will deal with price action. What is price action? Price action thinking. कैसे approach किया जाए? So let us start today's discussion. Candlestick calamity. We have heard this phrase कि price action is everything. राकेश झुनझुनवाला जी बोलते थे भाव भगवान छे. शायद मुझे लगता है ये जो टॉपिक है या ये जो लाइन है, आइदर इसको पॉसिबली मिस अंडरस्टैंड किया जा रहा है. इट इज ऐसे मैं देखा हूँ दोज जिनके इन माय स्मॉल मेंटोरिंग और टीचिंग कैरियर मैं नोटिस किया हूँ दीज प्रोमिनेंट साइकोलॉजिकल गैप इन द रेगुलर थिंकिंग ऑफ द पब्लिक. सो उसमें जो ख्यालात है जो चलते आ रहा, obviously promoted also by general YouTubers, that price action is everything, and in this understanding candlestick play a very important role in this understanding. So लोग को लगता है कि कैंडलस्टिक जानने से, relying strategies on candlestick, it will be a fantastic successful strategy. So they learn more about candlestick. मैं candlestick के against नहीं हूँ, but ये जो notion कि candlestick ही है price action, I want to challenge this. And also candlestick is the only method to learn, और मेजर इंपॉर्टेंट मेथड टू लर्न. इसको भी हम लोग थोड़ा चैलेंज करने वाले हैं. नाउ लेट मी शो यू फर्स्ट कैंडल. दीज आर कैंडल्स. दीज इंडिविजुअल्स आर नोन एज कैंडल, और हिंदी में बोला जाए मोमबत्ती, क्योंकि ये जो है ये मोमबत्ती की तरह दिख रहा है. जस्ट अ मोमेंट. और ये जो रेड पोर्शन या ग्रीन पोर्शन, इसको बोलते हैं बॉडी, और बाकी जो कांटे की तरह दिख रहा है स्पाइक, इसको बोलते हैं विक. दे आर कॉल्ड विक. कैंडल रेड है, मतलब ये जो ऊपर का बॉडी, दिस इज द ओपनिंग प्राइस, एंड नीचे का एंड इज द क्लोजिंग प्राइस. तो कैंडल हुआ रेड. क्लोजिंग प्राइस is lower than the opening price, so candle is red. Opening price lower than closing price, that means closing price higher than opening price, candle is green. And these are spike, and these different candles का different नाम है. Swiggy has given a good breakout, so Swiggy in my radar, ये मैं highlight कर चुका हूँ ग्रुप में. So these are candlestick जो जानने के लोग कोशिश करते हैं. These are, इनका नाम है, जैसे इनको बोला जाएगा some sort of doji. There are this one in hindsight can be called dark cloud cover.
सो वेरियस कैंडल स्टिक्स और वेरियस नाम है उनके. मैं बोलता हूं इज कैंडल स्टिक इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज. 100% जानना चाहिए. 100%. इज इट नेसेसरी टू बिकम सक्सेसफुल ट्रेडर? नो. द आंसर इज नो. There are other methods, of course, but let's focus what is this price action. Before I can completely answer this, मुझे price action को challenge करना पड़ेगा, जो हम लोग next upcoming videos में करेंगे. और ये notion that price action is being told by these candles, and knowing these candles are super useful, are one of the most important tools. मैं जब ये कोचिंग कर रहा था, एक स्टूडेंट ने, मैं वैसे आई नो द कैंडल्स, आई हैव लर्नड अबाउट क्लासिकल चार्ट पैटर्न्स, बट आई प्रेफर टू यूज इंडिकेटर्स एज वेल. तो एक बार एक स्टूडेंट ने, उनको अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने बोला कि आई एम नॉट कवरिंग द प्राइस एक्शन एनफ. मतलब प्राइस एक्शन अच्छी तरह कवर अप नहीं कर रहा हूं मैं ठीक से, तो इंडिकेटर के ऊपर ज्यादा रिलाई कर रहा हूँ. आई शुड हैव. तो मैंने आस्क किया कि व्हाट इज यू मीन बाय प्राइस एक्शन. सो उन्होंने कैंडल स्टिक के जरिए क्रूड ऑयल एंड गोल्ड सिल्वर वगैरह वगैरह ट्रेड ले. आई लाइक लाइन चार्ट अ लॉट, बट कैंडल स्टिक्स आर ग्रेट टू. तो मैं आज कैंडल स्टिक के बारे में कुछ प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, विच इज deep research by a person named Thomas Balkowski. Thomas Balkowski researched on the success of the candles. Sorry, मेरा वीडियो रुक गया था for a moment. थॉमस बल्कोस्की ने काफी रिसर्च किया कैंडल स्टिक के बारे में, क्वांटिटेटिव रिसर्च, लाइक विच वन इज सक्सेसफुल मोर इन टर्म्स ऑफ दैट. सो वो रिसर्च मैं हाईलाइट करना चाहूंगा आप लोगों के साथ. जस्ट अ मोमेंट. ये एक्चुअली थॉमस बल्कोस्की ने काफी सारा ग्रेट बुक लिखा, क्लासिकल चार्ट पैटर्न्स को उन्होंने टेस्ट किया, कैंडलस्टिक को टेस्ट किया. उनका क्वांटिटेटिव रिसर्च इज क्वाइट सिग्निफिकेंटली फेमस. ही इज क्वाइट अ नोन फेस. बट बिफोर आई टॉक अबाउट हिम, आई वांट टू टॉक अबाउट समवन एल्स, दैट इज मुनेहिसा होन्मा. होन्मा भी बोलते हैं, होन्मा मुनेहिसा. He is known as the creator of the candlesticks. Almost 300 years ago, he was born, and he was a rice trading merchant in Japan. He is the one credited with the creation of candlesticks, and this is Mr. Thomas N. Balkowski, who has deep researched on various trading topics and published his quantitative research on candlesticks as well as classical chart patterns and many other things. आज मैं कुछ फाइंडिंग के बारे में बात करना चाह रहा हूं. जैसे मैंने बोला, कैंडलस्टिक में वेरियस है, बुलिश एनगल्फिंग, बियरिश एनगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार, राइजिंग स्टार, दोजी स्टार, many patterns. सो ओवरऑल ये उन्होंने टेस्ट किया 500 स्टॉक्स के ऊपर, एंड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years. So quite an extensive research. And all in all, in total, there were, or there is 103 different candle variety.
बट सम ऑफ द कैंडल्स वर्क टुगेदर, साथ साथ काम करते हैं. तो लेट मी शो यू. अब एक्सेल दिखा रहा हूं. आई होप आप लोग देख पा रहे हैं नाउ. 500 स्टॉक्स के ऊपर उन्होंने रिसर्च किया. 10 इयर्स डेटा के ऊपर रिसर्च किया उन्होंने, डेली चार्ट, एंड 103 डिफरेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स. एंड 103 कैंडलस्टिक पैटर्न में कुछ पैटर्न ऐसे हैं, लेट मी शो यू. हरामी पैटर्न और प्रेग्नेंट लेडी पैटर्न, हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न और प्रेग्नेंट लेडी पैटर्न. मतलब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसा भी है जो दो कैंडल मिलके एक फॉर्मेशन बना, एक कैंडल नहीं, टू. तो ऐसा थ्री का भी फॉर्मेशन. सो ऐसे वैरायटी अगर फॉर्मेशन देखा जाए, इफ यू लुक एट द टोटल फॉर्मेशन, there are almost 412 different combinations. And two type of market होते हैं. One is candles के साथ could be reversal and one could be continuation. मतलब बुल ट्रेंड था, एक कैंडल अपीयर हुआ, उसके बाद बुल ट्रेंड. जैसे हम लोग का फ्लैग पैटर्न रहता है इन क्लासिकल चार्ट पैटर्न में, फ्लैग रहता है, देन कंटिन्यूएशन. सो सिमिलरली कंटिन्यूएशन या रिवर्सल. एंड मार्केट टाइप जो है, वन इज द बुल एंड लार्जली बियर, या तो कंसोलिडेशन है. बुल बियर मार्केट लार्जली हम लोग ले रहे. तो थॉमस बाल्कोस्की ने ऑब्जर्व किया कि कैंडल सक्सेस मान रहे कि कैंडल सिग्नल आया, ब्रेकआउट, देन स्टॉप लॉस, यानी कैंडल का बॉटम, जो सिग्नल कैंडल का बॉटम, वो हिट नहीं हुआ, इट डज नॉट गेट हिट. तो बल्कोस्की ने फाइंड आउट किया कितने परसेंटेज ऑफ कैंडल वैसे सक्सेसफुल है. इंडिविजुअल कैंडल्स अगर देखा जाए कि हाँ उसके ऊपर जा रहा है, एक बार सिग्नल आया, स्टॉप लॉस हिट नहीं है, 69% ऑफ द कैंडल सक्सेस एंड 31% कंप्लीट फेलियर. बट 103 कैंडल से ये 412 डिफरेंट ट्रेड लिया जा सकता है इन बुलियन बियर बियर में. अगर सिर्फ सक्सेस नहीं, हम लोग चाहते हैं सक्सेस हो 60% ऑफ द टाइम्स, यानी सिग्नल आने के बाद हो सके रैंडम नहीं, हर बार हो रहा है, एटलीस्ट 60% ऑफ द टाइम सक्सेस, 60% ऑफ द टाइम सक्सेस हो रहा, तब जाके वो नंबर गिर जाता है. सक्सेस रेट इज 24% is the success rate. Now you see, completely relying on the candle. And some candles are rare. If we take top 50, top 1 to 50, 50 कितना बार आता है? 50 आता है 2000 कैंडल में. ये रहा टॉप 50 कैंडल, बता रहा हूं, टॉप 50 कैंडल. एंड जो नंबर 50 है उसका आता है 2000 कैंडल देखे तो 3 बार. 3 बार वो कैंडल देखने का चांस रहता है 2000 कैंडल में, ये नंबर 50. अगर टॉप 50 को लिया जाए, ये 24% सक्सेस रेट इज कमिंग डाउन टू 10%. और अगर ऐसा ही सक्सेस रेट को बढ़ा के कर दिया जाए 67%,
then the success rate number is dropping to 6% of the candles are successful. And उसमें भी रह जा रहा है 33% of times you are not going to be successful. So unless we know how to manage our psychology, which I have been saying many times now, that psychology and risk exposure management is going to win the day. It is not the candlestick knowledge, they're useful 100%. मैं स्टीव नीसन का बुक पढ़ चुका हूं and it is helpful. It is significantly helpful to know about different classical chart patterns. आपका देखने का नजरिया बदलता है. ठीक है, एटलीस्ट 60% टाइम सक्सेस तो 10% को है ना. So it is worth knowing whichever increases our success होने का odds. मैं सही तरीके से एक्सेल में दिखाया हूं, बट नॉट एज अ प्रॉपर पीपीटी, बट अब नंबर से मैं रिसर्च का कुछ ही पोर्शन हाईलाइट किया. बट इंपॉर्टेंट नॉलेज हम लोग ले सकते हैं कि आप समझ सकते हैं कि प्राइस एक्शन द वे यू थिंक in terms of candle may not be the case. Candle का success rate may not be what you think, and psychology and risk management, risk exposure management is going to win the day. That's all, friends. Thank you for watching this small trading philosophy and psychology video. Once again, I was able to highlight the importance of trading philosophy and trading psychology. Thank you so much. Have a great time. All the best. And as always, happy trading.